बुरे कामों से अच्छे काम की ओर बढ़ने के लिए हमें मदद मिलता है। ஆகையினால் இயேசு கிறிஸ்து மரித்து முன்னானால் உயிரோடு எழுந்த இயேசு மீண்டும் அவர் சீக்கிரத்தில் வரப்போகிறவராய் இருக்கிறார்। यीशु मरकर तीसरे दिन जी उठा वाला जिंदा परमेश्वर फिर से ये धरती पर आने वाला है। அவர் வருகிறதற்கான அந்த உலகத்தினுடைய எல்லா அடையாளங்களும் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது। यीशु दोबारा ये धरती पर आने का जो बहुत सारे घटनाएं ये आज भी ये धरती पर हो रहा है। இந்த உலகத்திலே நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் பூமி அதிர்ச்சிகள் கொள்ள நோய்கள் ராஜ்யத்துக்கு ராஜ்ய யுத்தங்கள் மனுஷனுடைய அன்புகள் தணிக்கப்படுகிறதா இருக்கிறது। ये यीशु मसीह इस धरती पर आने के पहले यीशु कह कर गया कि ये धरती पर ऐसे चिन्ह जब देखेगा तब याद करना ये धरती पर ऐसे घटना भूकंप महामारियां जो अकाल युद्ध लड़ाइयां और इंसान की आपस का प्रेम दूर चले जाते वो एक दूसरे को नफरत करते इन तमाम चीजें देखेगा तब याद करना ये धरती पर मेरा आने का समय निकट है। அந்த வருகைக்கு நீங்க ஆயத்தப்படவில்லை என்று சொன்னால் நிச்சயமாகவே இயேசு உங்களை அழைத்து கொண்டு போக வல்லவராய் இருக்கிறார்। हाँ प्यारो यीशु का उस आगमन के लिए अगर हम दिल से तैयार हो जाएंगे तो निश्चय है उसने हमारे लिए रखा गया जो मुक्ति का जगह स्वर्ग में हम भी जा सकते हैं। நீங்கள் இந்த உலக வாழ்க்கையிலும் ஆசீர்வாதத்தை பெற்று வரப்போகிற வாழ்விலும் ஆசீர்வாதம் பெற வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறவராய் இருக்கிறார்। परमेश्वर मेरे और आपके प्रति ये इच्छा रखा गया है ये धरती पर भी हम आशीषित रहे अच्छे रहे साथ ही साथ स्वर्ग जो परमेश्वर हमारे लिए तैयार करता है वो जगह में भी हम आशीषित और अच्छे रहे। நீங்க நினைக்கலாம் நான் இத்தனை ஆண்டு காலமாக என்னுடைய பரம்பரை என்னுடைய கோத்திரங்கள் என்னுடைய குலங்கள் எல்லாம் இதை கடைபிடித்து வந்தோம் இன்றைக்கு புதிதாக இயேசுவை அறிவிக்கிறார்களே இதை எப்படி என்று சொல்லி இது ஏதோ மதம் அல்ல உங்களுடைய இருதயத்திலே இயேசு உண்மை உள்ளவர் என் பாவத்துக்காக என் சாபத்துக்காக என் வியாதிக்காக மரித்து ஜீவனை தந்தார் என்று சொல்லி நீங்க இருதயத்தில் ஏற்றுக்கொண்டால் போதும் அவர் உங்களுக்கு சொந்த ரட்சகராய் மாறுவார்। आप इस बात को सोचता होगा मैंने बहुत सारे परंपरा और रीति रिवाज को लेकर चलते हैं अभी आकर एक नया कार्य सुनते हैं या सुनने के लिए मिलता है ऐसा नहीं प्यारो यीशु सच्चा खुदा है जो हमारे जीवन को बदलने के लिए आया वाला सच्चा परमेश्वर अगर हम भी उस सच्चा खुदा को हमारे जीवन में अनुभव करें निश्चय हमारे जिंदगी में भी वो एक नया शुरुआत देगा। ஆம் பிரியமானவர்களே பரலோகம் உண்டு நரகம் உண்டு இந்த உலகத்தில் நாம் எல்லோரும் விஞ்ஞானத்திலே அல்லது எல்லா போன் மூலம் நெட் மூலமாய் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அதை நாம் நிச்சயமாகவே அறிந்திருக்கிறவர்களாக இருக்கலாம் அந்த இடத்துக்கு நீங்க போக வேண்டாம் நிச்சயமாகவே பரலோகம் போக வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த அன்பை அறிவிக்கும்படியாக நாங்கள் வந்திருக்கிறோம்। मेरे प्यारे लोगों धरती में ये यहाँ पर एक नरक है स्वर्ग भी है याद रखना ये दोनों जगह जरूर है लेकिन हमारा मकसद यही है परमेश्वर का भी इच्छा यही है हम पाप करके नरक की ओर ना जाएं परमेश्वर हमारे लिए तैयार किया हुआ वो स्वर्ग पर पहुंचना है ये कारण से ये प्यार हम आपके सामने यीशु के नाम से जताते हैं। இந்த சரீரத்தில் இருக்கும்போது நமக்கு தாகம் ஏற்படுகிறது எல்லாம் உண்டாகிறது அதே போல இந்த சரீரத்தை விட்டு ஒரு மனுஷன் பிரிந்த பிற்பாடும் அவனுடைய உணர்ச்சிகள் அவன் தெரிந்து கொள்கிற ஆற்றல்கள் அவனுக்குள்ள இருக்கிறது। देखिए ये शरीर के अंदर अब जब हम रहते हैं प्यासे हैं भूखे हैं सब कुछ है वैसे हम मरने के बाद भी हमारे अंदर बहुत कुछ ऐसे चीजें देखने के लिए मिलेगा। ஆகையால் அந்த பரலோகத்துக்கு செல்லும் போது அவனுக்கு தேவையான எல்லாம் உண்டாயிருக்கிறது। हाँ याद रखना जब वो एक आत्मा परलोक में स्वर्ग में जब पहुंचता है उस आत्मा के लिए जो भी चाहिए वो भी स्वर्ग में है ஆனால் நரகத்துக்கு போகும்போது அங்கே ஒரே அக்னியா இருக்கிறது। लेकिन नरक ऐसा जगह है वहां पर आग से भरा रहता है। ஆனால் நாம் இந்த உலகத்திலே சௌந்தமா இருக்கும்போது அல்ல கவலையா இருக்கும்போது ஏதாவது மதுபானத்தை உட்கொண்டு நம்முடைய கவலையை போக்கலாம் என்று சொல்லி நினைக்கிறோம்। इस धरती पर जब हम बड़े दुख में संकट में टेंशन में रहेगा तब उससे दूर होने के लिए उससे मुक्ति पाने के लिए शराब पीते हैं या ऐसे कुछ उपाय को हम करते हैं। ஆனால் அங்கே போகும்போது ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட அங்கே கிடைக்காது। लेकिन याद रखना उस अनंत नरक जो आग से भरी रहती है वहां पर एक बूंद पानी तक नहीं मिलेगा। நீங்க அந்த அவல நிலைக்கு நீங்க போய் கூட கூடாது அந்த அவல நிலைக்கு நீங்களாம் போக கூடாது என்று சொல்லிதான் இயேசு இந்த உலகத்துல வந்தார் நாங்களும் உங்க இடத்துக்கு வந்திருக்கிறோம்। मेरे प्यारे लोगों हम सभी उस अनंत नरक में नहीं जाना है बोलकर यीशु ये धरती पर आया है आप सभी भी उस अनंत नरक में नहीं जाना है बोलकर हम भी यहाँ पर आए हैं। அவருடைய அன்பின் செய்தியை சொல்ல முடியாது यीशु का प्यार की समाचार को कहता है நீங்க எந்த நிலையில இருந்தாலும் சரி आप किसी भी हालत में क्यों ना हो எப்பேற்பட்ட புறக்கணிக்கப்பட்ட நிலையில இருந்தாலும் சரி किसी प्रकार की त्यागा हुआ हालत में क्यों ना हो இந்த உலகத்துல எந்த யாராலும் எனக்கு உதவி செய்ய முடியாது என்று சொல்லி நீங்க நினைக்கலாம்
मेरे जीवन में कोई मुझे मदद नहीं करते करके आप सोचता होएगा। நிச்சயமாகவே நீங்க இருக்கிற இடத்துல அந்த இயேசுவுக்கு உங்களுடைய இருதயத்தை கொடுப்பேன் என்று சொன்னால், अगर आप जिस स्थान में हो वहां पर होते हुए आपका दिल को उस परमेश्वर यीशु के लिए देगा तो இயேசுவே நீ மெய்யான தெய்வம் என்று சொல்லி அவரை நீங்கள் வரவேற்கும் போது நிச்சயமாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அற்புதங்களை जब செய்வார். आप इस बात को कहेंगे खुदा आप ही सच्चा परमेश्वर है करके जब हम कहेंगे निश्चय वो अपने हमारे लिए उनके तरफ से अच्छाई की जिंदगी देने के लिए तैयार है। இதை நாங்கள் சொல்லுவது ஏதோ எங்களுக்கு நேரம் போகாதனால அல்ல, நாங்கள் பெற்ற சந்தோஷம் அதை நீங்கள் இயேசுவை நாங்கள் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம். அந்த இயேசு இன்றைக்கும் ஜீவிக்கிறார், அதற்கு நாங்கள் சாட்சியாக இருக்கிறோம். आपका समय को बर्बाद करने के लिए ये बातें नहीं करते हैं, जो बातें हम अपने जीवन में अनुभव किया है उस बातों को हम आपके समक्ष में करते हैं। இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா காரியங்களும் மாறலாம், ஆனால் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர், உங்களையும் என்னையும் உண்டாக்கினவர், உங்களையும் எனக்காக மரித்து ஜீவனை தந்த இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே நேற்றும் என்றும் மாறாதவராயிருக்கிறார். ये धरती का जो भी चीजें हम दिखता है सब कुछ बदल सकता है, लेकिन जो मुझे और आपको बनाया वाला जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर कभी भी किसी भी हालत में नहीं बदलता हुआ एकमात्र परमेश्वर है। அந்த இயேசு கிறிஸ்துவை உங்களுடைய உள்ளத்துல வரவேறுங்கள். वो यीशु को हम अपने जीवन में स्वीकार உங்களுடைய करें। குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படும், आपका जिंदगी आशीषित हो உங்களுடைய जाए, தொழில் ஆசீர்வதிக்கப்படும், आपका काम आशीषित உங்களுடைய हो படிப்பு जाए, ஆசீர்வதிக்கப்படும், आपका पढ़ाई पर உங்களுடைய आशीषित பிள்ளைகள் होगा, आपके ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள், बच्चे भी आशीषित உங்கள் होंगे, குடும்பம் சமாதானமாயிருக்கும், आपका परिवार शांति से भरा रहेगा, நிச்சயமாகவே நல்லா இருப்பீர்கள். आप बिल्कुल अच्छे रहेंगे। அதைத்தான் உங்களை உண்டாக்கின கடவுள் விரும்புகிறார். वो ही है जो आपको बनाया वाला परमेश्वर का इच्छा। அதற்காக எல்லாவற்றையும் சிலுவையிலே செஞ்சு முடிச்சு விட்டார். उसी के लिए यीशु मसीह सूली पर सब कुछ कर दिया है। அவரை உள்ளத்துல விசுவாசியுங்கள், आप उन्हें यीशु मसीह को आपके हृदय में विश्वास करिएगा। அவருடைய உள்ளத்துல விசுவாசித்து நாவிலே அவரை இயேசு என்று சொல்லி கூப்பிடுங்கள், நிச்சயமாக உங்களுடைய வாழ்க்கை மாறும். सच में उस यीशु को अपने जुबान से अंगीकार करके हृदय से बोलकर यीशु को स्वीकार करेगा तो यीशु आपका जिंदगी में आएगा। அதுதான் உண்மையான கிறிஸ்மஸ். वही है असली एक क्रिसमस। அந்த கிறிஸ்மஸ் உங்களுடைய உள்ளத்திலே அவர் பிறக்க விரும்புகிறார். वो यीशु आपके दिल में जन्म लेना चाहते हैं, அவருடைய குடும்பத்துல வர விரும்புகிறார். आपका परिवार में जन्म लेना நீங்க चाहते हैं। போகும்போது வரும்போது உங்களோட கூட இருந்து உங்களை ஆசீர்வதிக்க आप விரும்புகிறார். जहां भी जाएंगे आएंगे हर क्षेत्र में आपके संग रहकर आपको आशीषित करेगा। ஒரு தாயை போல தகப்பனுக்கு மேலாக அவர் உங்களோடு இருந்து உங்களை நடத்த வல்லவராயிருக்கிறார். एक माँ से बढ़कर पिता से बढ़कर आपके संग रहकर आपको मदद करेगा। वो நீங்கள் இப்ப இங்க வந்து ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கும் என்று சொன்னால் வந்து ஜெபிக்கலாம், அல்லது நீங்க உங்க இருக்கிற இடத்துல இந்த ஜெபத்தை நீங்கள் தொடரவில்லை என்று சொன்னால் நிச்சயமாகவே நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட சந்தோஷ சமாதானமும் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தேசு தர வல்லவராயிருக்கிறார். अगर आप इस बात को कहें मैं भी प्रार्थना करने की इच्छा करता हूं तो जरूर हमारे साथ यहाँ पर आके प्रार्थना कर सकते हैं। अगर नहीं आप जिस स्थान में हो वहां पर होते हुए खुदा से बोले खुदा मुझे मदद करिए, निश्चय वो यीशु आपको मदद करने के लिए सामर्थ्य है। ஆம் பிரியமானவர்களே, இந்த சோல்தாரில் இருக்கிற அருமையான வியாபாரிகளே, உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் வருகின்ற 2024 ஆண்டின் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களையும் கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துக்களையும் சொல்லுகிறோம். உங்களுடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாக இருக்க இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். इस इलाका में चुलदारी में रहने वाले जितने व्यापारी लोग हैं और जितने प्रिय लोग यहाँ पर रहते हैं सबको ये 2025 का नया साल का मुबारक, साथ ही साथ क्रिसमस का मुबारक देते हुए हम यहाँ से समाप्त करना चाहते हैं। கடவுள் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आने वाला है यीशु आने वाला है, तुझको बचाने वाला, मुझको बचाने वाला, तुझको बचाने वाला, तुझको बचाने वाला, सबको बचाने वाला अब आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है।
शांति दाता, वो है मेरा शांति दाता। जीवन को अपने जो दिया, पापों से हमको बचाया, वो है मेरा मुक्ति दाता, वो है मेरा शांति दाता। जीवन को अपने जो दिया, पापों से हमको बचाया, वही मेरा उद्धार है, वही मेरा आधार, वही मेरा उद्धार है, वही मेरा आधार। सबको बचाने वाला अब आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है। राजाओं का है वो राजा, हम लोगों का है मसीहा। फिर से वो आता है देखो, ले जाएगा अपने पास। राजाओं का है वो राजा, हम लोगों का है मसीहा। फिर से वो आता है देखो, ले जाएगा अपने पास। वही मेरा यार है, वही मेरा पालनहार, वही मेरा यार है, वही मेरा पालनहार। सबको ले जाने वाला अब आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है। तुझको बचाने वाला, तुझको बचाने वाला, तुझको बचाने वाला, मुझको बचाने वाला, सबको बचाने वाला अब आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है। वासियों को भी जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं। क्रिसमस और नया साल को मुबारक देते हुए हम लोग इस जगहों से विदा लेते हैं। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट। खुदावंद यीशु, आपने इस प्रकार एक अवसर इस चौधरी इलाका पर आपने दिया है। प्रभु यीशु, आपका जन्म के बारे में, दूसरे आगमन के बारे में कहने के लिए आपने मदद किया। 2000 साल के पहले स्वर्ग छोड़कर मानव जातियों को रक्षा करने के लिए इस धरती पर आए हुआ प्रभु यीशु मसीह का कुछ खबरों को देशवासियों को, व्यापारी लोगों को बताने के लिए आपने मदद किया। धन्यवाद खुदावंद यीशु। हम लोग वापस लौट रहा हूँ प्रभु यीशु, यहाँ रहने वाला हर एक व्यक्ति को आपने संभालिए, आपने सुरक्षा रखिए। आपका आगमन का समय स्वर्ग राज्य का वारिश बनने के लिए आपने मदद करने के लिए मैंने प्रार्थना करते। आदर और महिमा सर्वशक्तिमान परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।